بات ہوگی سندھ اسمبلی کے اجلاس کی، جس میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس شاہ اور ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایوان میں 2 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے ہیں۔ چناؤ خفیہ رائے شماری سے ہو رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید اینتھنی اور راشد شاہ مد مقابل ہیں۔ ارکان سندھ اسمبلی حروف تہجی کے اعتبار سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس 114 ارکان، ایم کیو ایم کے پاس 36 نشستوں کے ساتھ سندھ کی دوسری بڑی جماعت۔ سندھ اسمبلی کے اطراف کے راستوں پر کنٹینر موجود، پولیس کی بھاری نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس شاہ اور ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایوان میں 2 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ چناؤ خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید اینتھنی اور راشد شاہ مد مقابل ہیں۔ ارکان سندھ اسمبلی حروف تہجی کے اعتبار سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس 114 ارکان، ایم کیو ایم کے پاس 36 نشستیں ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اطراف کے راستوں پر کنٹینرز موجود ہیں اور پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے عامر فاروق سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت سندھ اسمبلی کے ایوان میں اسپیکر سندھ اسمبلی کے چناؤ کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کوئی 20 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے انتخاب کے بعد اپنا حلف لیں گے اور پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ دوسرا، سندھ اسمبلی کے باہر کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ کل کی وجہ سے جو وہ آج بھی موجود ہے۔ عامر فاروق، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس شاہ اور ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ کے درمیان مقابلہ ہے اور ایوان میں 2 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ چناؤ خفیہ رائے شماری سے ہو رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا مراد علی شاہ کے مد مقابل امیدوار لانے کا فیصلہ۔ وزیر سندھ کے لیے علی خورشیدی ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا۔ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے مراد علی شاہ کے مد مقابل امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو عددی اکثریت حاصل ہے، اس کے باوجود ایم کیو ایم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ان کے مد مقابل مراد علی شاہ کے مد مقابل امیدوار لائیں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے علی خورشیدی ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے، جس کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا اور آج ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے مراد علی شاہ کے مد مقابل امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے علی خورشیدی ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے اور سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم 36 نشستوں کے ساتھ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 114 اراکین ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے عامر فاروق سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے گا، اس وقت سندھ اسمبلی کی صورتحال کیا ہے؟ کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے؟ جی بالکل، 20 سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت اویس قادر شاہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے صوفیہ سعید شاہ امیدوار ہے اسپیکر کے لیے۔ اسپیکر کے انتخاب کے بعد اسپیکر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کل اس بات کی کوشش کی تھی کہ ایم کیو ایم دستبردار کرا لے اس مقابلے میں، تاکہ وہ ان کا بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہو سکے، تو نہ صرف ایم کیو ایم نے انکار کیا بلکہ قائد ایوان لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی خورشیدی ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی کے قائد ایوان کے امیدوار ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی پہلے اعلان کر چکی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر، یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ نمبر گیم میں پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب چونکہ کل ہونے جا رہا ہے، ایسے میں جو ایم کیو ایم ان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ وہ امیدوار لائیں گے سامنے؟ جی بالکل، ذرائع کا کہنا ہے کہ علی خورشیدی امیدوار ہوں گے قائد ایوان، نئے قائد ایوان کے لیے، جبکہ پیپلز پارٹی پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری اعلان کر چکے ہیں کہ مراد علی شاہ نئے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جب امیدوار لانے کا فیصلہ ہوا تو پیپلز پارٹی کے ارکان نے ایم کیو ایم سے کہا تھا کہ وہ اپنے امیدوار دستبردار کرا لیں۔ نہ صرف ایم کیو ایم نے انکار کیا بلکہ اب قائد ایوان میں حصہ لینے جا رہی ہے، جس کا اعلان اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا۔ اس وقت اسپیکر کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اویس قادر شاہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ووٹنگ جاری ہے۔ شکریہ آپ کا عامر۔
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार लाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के लिए अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार होंगे। इस मुतालिक आपको बताया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। PTI के हिमायत याफ्ता 9 अरकान आज़ाद अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। जमात इस्लामी के नमुंतखब रकन मोहम्मद फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। आज़ाद अरकान ने सिंध असम्बली पहुंचने पर नारेबाजी भी की। गुज़श्ता रोज़ 147 अरकान ने सिंध असम्बली ने हल्फ लिया था। मजमूई तादाद 157 हो गई। अहम खबर PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत के पास कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने की एडवाइस कल भेजी गई है। कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आइनी इख्तियार रखता हूँ, सदर का ये मौक़िफ़ है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। सदर को ये ब्रीफिंग भी दी गई है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो इसी दिन हल्फ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। तो सदर ममलकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत में ताक़ीद है। ज़रा ये बता रहे हैं कि सदर ममलकत के पास कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाने की एडवाइस कल भेजी गई है, जिस पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। सदर ममलकत की जानिब से कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आइनी इख्तियार मेरे पास है, सदर ममलकत का ये मौक़िफ़ है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि सदर को ये ब्रीफिंग दी गई है कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाना ज़रूरी है। और अगर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी दिन हल्फ उठाएंगे अरकान असम्बली और उसके बाद नए स्पीकर के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है सदर ममलकत की जानिब से? सदर मुमलिकत के पास कल एडवाइस गई है, प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है और मंडे के इजलास के लिए, लेकिन उन्होंने जो अपने जिनके साथ मुशावरत की उन्हें बताया गया कि आपको ये इजलास बुलाना है। उनका ख्याल ये है कि चूंकि अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, वो अभी भी अपनी पार्टी PTI के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद है, तो जिसकी वजह से वो डिले करना चाह रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि वो कहेंगे कि नहीं, मेरे पास 15 दिन हैं एडवाइस पे अमल दरामद के लिए। तो उनको बताया गया कि 21 दिन मैक्सिमम होते हैं इलेक्शन के बाद असम्बली का इजलास, तो वो 29 फरवरी बनता है। तो आप रोकना भी चाहें तो 29 फरवरी तक आपको लाजमी बुलाना है। ये पिछले दिनों जो नैब के 2 ऑर्डिनेंस थे उनके पे भी सदर मुमलिकत ने इसी तरह किया था, लेकिन फिर उनको अमल करना पड़ा था आइन पे जाके, इनकार करने के बावजूद। अब वो समझ रहे हैं कि शायद वो प्रेशर डालेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे फैसला करना है। कल उनकी मीटिंग है कि मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए क्या किया जाए। उसके बारे में हर बंदा क्लियर है कि ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो क्या फैसला करेगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अभी सिर्फ खत लिखा है और लिस्ट भी नहीं दी है ख़वातीन मेंबरान की और अक़लियतों के लिए। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ओरिजिनल पार्टी की तरफ से तो पहले दिन से भी कोई नाम मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादा इनको नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले ये MWM और जमात इस्लामी से कर रहे थे तो वहां मखसूस नशिस्तों पे नाम दिए गए थे, वो PTI खुद तय नहीं कर सकी। अब सदर मुमलिकत का उन्हें सहारा है और कल सदर मुमलिकत ने ये खबर खुद PTI के हल्कों को बताई कि मैं अभी इजलास नहीं बुला रहा और मैं डिले करूंगा, लेकिन उनको बता दिया गया है कि 29 फरवरी आखिरी तारीख है। अब अगर 29 को इजलास होता है तो फिर 2 को स्पीकर का इलेक्शन होगा और 4 को वजीर आजम का इलेक्शन होगा और 9 मार्च सदर मुमलिकत के इलेक्शन कमीशन तजवीज़ कर चुका है कि वो इलेक्शन उन्हें कराना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, हम खबर आप तक पहुंचाएं। तख्ते पंजाब का वजीर आला कौन होगा, इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला की नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वजीर आला का उम्मीदवार तब्दील किया है। इससे पहले मियां असलम इकबाल थे उम्मीदवार, अब उनकी जगह राना आफ्ताब वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। तख्ते पंजाब का वजीर आला कौन होगा, जिसका इंतखाब कल होने जा रहा है और उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। सूबों में हुकूमत साजी का मरहला जारी है। हर सूबे में बाग दौड़ नई हुकूमत को मुंतकिल होगी। निगरान हुकूमत का दौर खत्म हो जाएगा। इक़्तिदार की मुंतकली का तरीक़ाकार क्या है, जानिए एमन चौधरी की ज़बानी। आम इंतखाबात तो हो चुके हैं,
अब अहम मरहला हुकूमत साजी का है और सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं। कौमी असम्बली में 169 का मैजिक फिगर है, जिसके पास इतनी सीटें होंगी उसी की हुकूमत बनेगी और सूबों में भी हुकूमत साजी का मरहला इससे हटकर नहीं है। इंतखाबात के 21 दिन बाद आईनी तौर पर नौ मुंतखब असम्बली का इजलास आम बुलाना लाजिम होता है। पंजाब और सिंध में तो असम्बलियों के इजलास हो चुके हैं, नौ मुंतखब अरकान हल्फ भी उठा चुके हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के चुनाव के बाद कायदे ऐवान मुंतखब होंगे। पंजाब असम्बली 371 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 297 जनरल नशिस्तें हैं। खातीन की मखसूस 66 सीटें और अक़लियतों की 8 नशिस्तें हैं। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार है। सिंध का ऐवान कुल 168 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जनरल नशिस्तों की तादाद 130, खातीन की 29 और अक़लियतों की 9 ख़ुसूसी नशिस्तें हैं। हुकूमत बनाने के लिए 85 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 145 है और सूबे में 115 में से 113 सीटों पर पोलिंग हुई। खातीन की 26 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हैं और किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 73 सीटों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में कुल 51 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। खातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के बाद अरकान की कुल तादाद 65 है। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए 33 नशिस्तों की ज़रूरत है। वेलकम बैक। अहम खबर, पीपल्स पार्टी ने मुझे आईनी ओहदे के लिए नामजद करके इज्जत अफजाई की। उम्मीदवार बराए डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने मुझे आईनी ओहदे के लिए नामजद करके इज्जत अफजाई की। सिंध में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होने जा रहा है असम्बली के लिए और पीपल्स पार्टी ने मुझे आईनी ओहदे के लिए नामजद करके इज्जत अफजाई की है। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मोबाइल सिंध की एक सियासी तारीख में नया जो है वो उस बाब का इजाफ़ा किया है कि पहली दफ़ा कोई गैर मुस्लिम जो है वो सिंध असम्बली का एक आइनी ओहदा संभालने जा रहा है बतौर डिप्टी स्पीकर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, ये उनके लिए जहाँ पर माजी में भी बहुत सारी लेजिस्लेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनॉरिटी फ्रेंडली की है, लेकिन इस मौजूदा हालात में ये एक नया ताज़ा हवा का झोंका है जो पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी कमज़ोर तबकात हैं और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल वर्कर जो ये समझते हैं कि आम सियासी कारकुन को सियासी जमात जो है वो उस तरीके से कोई ज़िम्मेदारी नहीं देती, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ना सिर्फ आम एक सियासी कारकुन की जिस तरीके से इज़्ज़त अफजाई की है और उसमें अगर वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से रखता हो, ताल्लुक़ रखता हो, तो मैं समझता हूँ कि इस अमल को अगर हम अपने सियासी जदोजहद का हिस्सा बना लें तो फिर यहाँ पर कोई तबकात की तकसीम इस मुल्क में नहीं हो सकती। अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हो गए हैं। हारिस रऊफ गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स के खिलाफ मैच के सनसनीखेज लम्हात में हसन अली का कैच लेने के दौरान कंधे के बल गिर गए थे। उन्होंने कैच तो थाम लिया मगर इस दौरान वो जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई, जबकि CT स्कैन भी कराया गया। ज़रा के मुताबिक उनके मज़ीद टेस्ट भी किए जाएंगे। HPL पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा धचका लग गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के तर्जुमान के मुताबिक इंग्लिश ओपनर एलेक्स हेल्स ज़ाती मसरूफियात के बायस 26 फरवरी को शेड्यूल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बरतानवी क्रिकेटर कराची में शेड्यूल दूसरे मरहले के मैचेस के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।